the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Thank and praise God for this wonderful opportunity. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ बहुत ही अच्छे मौके के लिए। I'm relatively new. मैं अभी भी काफ़ी नया हूँ। So when Brother Dr. George told me that we are all going for a retreat, तो जब ब्रदर जॉर्ज ने बोला कि हम सभी एक जगह पे जाने वाले हैं, खेड़गांव, I thought that maybe he is telling me for courtesy sake because I may be out of place. तो मुझे ऐसा I do लगा not know anybody. कि मुझे बुला रहे हैं शायद से सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि मैं अभी भी नया हूँ और शायद से सबसे घुल मिला नहीं हूँ अभी तक। Yeah, and I do not know Brother Zach also. और मैं ब्रदर जैक को भी नहीं जानता था। Anyway, few weeks I came here and I really enjoyed being with all of you. So that was my only consolation. तो मैं यहाँ पे लेकिन कुछ हफ्ते से आ रहा हूँ और उसके वजह से यहाँ पे सभी के साथ मुझे अच्छा लगा है और यही मेरे मन में एक तसल्ली था। Yeah, so Brother George was very keen. Every week he was telling me, and his family was also pushing. और लेकिन ब्रदर जॉर्ज हर हफ्ते बोल रहे थे, उनके परिवार वाले भी हर हफ्ते हमें बोल रहे थे। So I went. और इसलिए मैं आया। But then I know that it was a very wonderful experience. लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। Yeah, more I was enjoying looking at all of you, how enthusiastic you were. तुम सभी को देख के, तुम्हारे उत्साह को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। It's not like going in some other picnic or retreat or anything like that. और ऐसा नहीं है कि बस हम लोग एक पिकनिक पे जा रहे हैं, वैसा नहीं था। Yeah, and I also got an opportunity to be with Brother Zach. और मुझे एक मौका मिला ब्रदर जैक से मिलने का। Then I remembered that around 5-6 years before, फिर मुझे याद है तकरीबन 5-6 साल पहले somebody gave me a CD. किसी ने मुझे एक सीडी दिया था। It was a preaching or something like that of Brother Zach. जिसमें ब्रदर जैक के प्रचार थे। And the person who gave told that don't tell anybody that I am giving you because I will be thrown out of my church. तो जिस व्यक्ति ने मुझे वो सीडी दिया उसने बोला कि किसी को बोलना मत कि ये मैंने तुम्हें दिया है, वरना मुझे कलीसिया से बाहर फेंक देंगे। Yeah, so I became more curious. तो वो सुन के मुझे और दिलचस्पी मेरी बढ़ गई। And when I was traveling in the car, I was listening to his CD. तो जब मैं गाड़ी में सफर करता रहता था तो मैं उनकी सीडी को सुनता था। This was around 5-6 years back. तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। So that made me think then I should meet him if I get an opportunity, you know. फिर वो सुनने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मुझे जरूर इनसे मिलना है। Then I met him, like all of you. I saw that you got an opportunity to be with him. फिर मैं उनको मिला और तुम सभी के जैसे मुझे भी एक मौका मिला उनसे मिलने का। And I understood one thing. और मुझे एक चीज समझा। I mean, I was thinking what I will say. Maybe I will have to say quietly, and I was smiling and sitting in front of him without saying. तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी क्या बोलना है, शायद से मैं बस चुप ही बैठूंगा और मुस्कुराऊंगा उनके सामने बैठ He के। also asked me who you are. You know. उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। Anyway, I thought my wife will be talking more, so. तो मैं सोच रहा था शायद मेरी पत्नी ज्यादा बात करेगी तो मैं चुप रहूं। But then he was a very humble, simple person. You know, I thought like I expected him to come in suit and on big watch, you know, like many pastors come on stage. तो मैं सोच रहा था कि ये शायद बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, सूट वगैरह पहन के आएंगे, लेकिन ये बहुत ही सीधे साधे नम्र व्यक्ति थे। Yeah, but he was very. I mean, how Jesus was supposed to come. We don't have any English. We can talk to Jesus if he is coming. तो जैसे प्रभु यीशु अगर आते तो इस तरीके से रहते थे, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाके उनसे बात कर सकता था। Yeah, so he told me he was in the Indian Navy. तो उन्होंने मुझे बोला कि वो हिंदुस्तान के नेवी में थे। Yeah, and he was the only person in the history of the Indian Navy where they wanted him to go out. और वो इंडियन नेवी के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर आए थे आजाद होके। Yeah, he told me like that. He was an officer. उन्होंने मुझे बोला कि वो एक ऑफिसर थे। And you know, in the Navy, there is something called as officer-like quality. ऑफिसर लाइक क्वालिटी। Yeah, it's OIQ. It's called as OIQ. और नेवी में ऐसे एक बात है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मतलब एक ऑफिसर के पास एक गुण होना चाहिए। So you have to keep up the name of the Indian Navy and status. So you cannot do anything. कि तुम ऑफिसर होने के नाते तुम्हें इस तरीके से चलना है, फिरना है कि तुम कभी भी उसके स्थान को नीचे ना करो। Yeah, you have the way you walk, the way you dress, the way you talk, जिस तरीके से बोलते हो, जिस tariके से कपड़े पहनते हो, the way you eat food, everything is important. तो हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम हिंदुस्तान की नेवी का एक हिस्सा हो। Now, Brother Zach was, whenever he has having free time, he used to go out on the street and preach the gospel. तो ब्रदर जैक जब भी उनके पास कोई खाली समय होता था तो वो बाहर जाके रास्तों पे सुसमाचार का प्रचार करते थे। Which is very unbecoming of an officer in the Indian Navy. जो एक ऑफिस इंडियन नेवी के ऑफिसर के लिए अच्छा चीज नहीं था। It's a shame. वो एक शर्मिंदा वाली बात थी। So when he applied for relieving him from the duties, तो जब उन्होंने अप्लाई किया कि उन्हें राहत मिले and the reason he said he wrote in the resignation letter that I want to preach the gospel of Jesus. So, और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि मुझे प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करना है। so they thought it's better he goes. You know? तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ही होगा अगर ये व्यक्ति जाए। So they relieved him.
तो उन्होंने जल्दी छोड़ दिया। And I liked it because when I was in the college, it was my dream to join the engineering. तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा भी एक सपना था कि मैं इंडियन नेवी में जाऊँ। I was selected also, but मैं सिलेक्ट भी हुआ था, but I had to go for engineering, so I left that. लेकिन क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में जाना पड़ा तो मुझे वो सपने को छोड़ना पड़ा। So we had an immediate rapport with each other. तो हमारे पास बीच एक कैसे तुरंत एक रिश्ता बन गया। Yeah, after talking for a short time, what I understood is, फिर उनके साथ थोड़ा सा मैं बात करने के बाद मुझे ये चीज समझा, see, if you read the first book in the Bible, अगर Genesis, तुम बाइबल की पहले पुस्तक को पढ़ते हो उत्पत्ति को, we see God calling Abraham. हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर इब्राहिम को बुलाते हैं। He said, "Come." परमेश्वर बोलते हैं कि आओ। Before he was a idol worshipper. एक समय था जब वो सब मूर्ति पूजा करने के बीच बसता था He इब्राहिम। said, "Come, leave everything and come." परमेश्वर ने बोला कि तुम ये सब चीज छोड़ो और आओ, And he just came और वो आया without anything. भले ही कोई चीज सोचे बिना। Then we find the next 1,000 years of suffering and agony and all the things, but he was looking straight to God. फिर उसके बाद हम लोग देखिए कितने सारे दुख उसने उठाए, कितने साल तक, लेकिन फिर भी इब्राहिम हमेशा प्रभु की ओर देखते रहते रहा। Because God had a plan, क्योंकि प्रभु के पास एक योजना था and the plan nobody knew. और वो योजना कोई भी नहीं जानता था। Today, maybe after 5,000 years of this happening, we know what was that plan. आज तकरीबन 5000 साल बाद हम लोग पीछे देख के समझ सकते हैं कि क्या वो योजना थी। Basically, God wanted to clear the way for the Messiah to come. और उस समय परमेश्वर चाहते थे कि एक मार्ग बने, एक रास्ता बने जिससे प्रभु यीशु आए। Yeah, so Abraham simply fitted into the plan. और इब्राहिम बस वो योजना में शामिल हो गया। Now that's what I understood from Brother Zach. और वो चीज मैं समझा ब्रदर जैक से He fitted into the plan of God. कि वो परमेश्वर की योजना में फिट हो गए या तो शामिल हो गए। So many things happened. और कितना कुछ हुआ उसकी वजह से, Even it reached us to us. और उसके जरिए हमारे पास भी उनका प्रचार आया। The best thing to fit into God's plan is when you are very young. तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग प्रभु की योजना में शामिल हो जाए, खासकर तभी जब हम लोग युवक होते हैं। Even now I pray after that, Lord, let me be fit into some of your plan. तो इसलिए मैं अभी भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मैं आपकी योजना में शामिल होना चाहता हूँ। Maybe we wanted to do many things. We want to preach, we want to do many things for the church, we want to do many things, but we may not be fitting into the plan. कई बार हमें अलग अलग चीजें करना होता है, जैसे प्रचार करना कलीसिया में, लेकिन हो सकता है कि प्रभु का योजना वो ना हो हमारे लिए। Once you tell Lord, I'm available, let me fit in your plan in whichever way possible. I think many things will happen in our life. लेकिन अगर हम लोग एक बार खुद नम्र करेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे बस तेरी योजना में शामिल होना है, भले तू जैसे भी वो करे, तो फिर काफी चीज हो सकता है। Yeah, that doesn't mean that we'll have a cush life because God is with us. Oh, maybe it's a hard life. But उसका मतलब ये नहीं कि सब चीज हमारे जीवन में अच्छा होगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, नहीं, हो सकता है कि बहुत ही मुश्किल वाला जीवन होगा, at the end it will be much different. लेकिन उसके अंत में वो बहुत ही बढ़िया जीवन I होगा। mean, this understanding what I got from my being with you all here is my asset. और ये जो समझ मैंने पाए तुम सभी के बीच रह के, ये मेरे लिए एक लाभ की बात है। I thank all of you, thank brother to push me to speak. मैं तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर ब्रदर जॉर्ज को जिसने मुझे धकेला इसमें। May God bless you. प्रभु तुम सबको आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। Before going to Khergaon, खेत जाने के पहले in fact, I'll talk about myself. I had a mentality like plan like I'm going to meet Brother Zach, तो मैं एक सोच ऐसा था कि मुझे एक योजना बनाना है कि मैं ब्रदर जैक से मिलूं and a lot of things I wanted to discuss with him. और बहुत सारी चीजों के ऊपर उनके साथ चर्चा करनी थी। So myself and my wife, we both had a plan. तो मैं और मेरी पत्नी दोनों के पास एक योजना था। We'll meet him, we'll discuss things. हम लोग उनको मिलेंगे और ये सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। So when we went to Khergaon, जब हम लोग खेड़गांव में पहुंचे, so I came to know that everybody had the same feeling. मुझे उस समय मालूम पड़ा कि हर एक व्यक्ति के पास यही योजना थी। I was trying to get advantage to go and sit in front of him and talk to him, but I never get for 2 days. I never got it for 2 days. मैंने बहुत कोशिश की एक मौका मिलने के लिए कि मैं उनके सामने जाके बैठूं और बात करूं, लेकिन 2 दिन में मुझे मौका मिला ही नहीं। I'm standing in the plate in the food queue and I'm seeing that people are coming twice. मैं उधर लाइन में खड़ा था और देख रहा हूँ कि कई लोग तो 2 बार आगे मिलके जा रहे And हैं। I'm getting frustrated why they don't understand. A lot of people are there on the queue to meet him. Why they are coming twice to meet him? और मुझे उस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या इन्हें समझता नहीं कि और भी लोग हैं रुके यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, तो बार-बार क्यों आगे मिल रहे In हो? the meantime, the sessions which we all were attending, लेकिन उसी समय में जहाँ पे जो सेशन चल रहा था, प्रचार हो रहा था, whatever questions I had were answered through that session. तो जो कोई भी मेरे दिमाग में प्रश्न थे वो प्रचार में उसका उत्तर मुझे मिल रहा था।
So everything I used to get, but at the same time I was very frustrated that I am not able to go and sit in front of him and talk to him. तो मुझे सारे उत्तर मिल रहे थे, लेकिन उसी समय मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे उनके साथ बैठ के बात करने का मौका नहीं And मिल even रहा। my wife is saying, when are we going to talk? Stand there next to, make a queue and stand there so that we can meet him. और मेरी पत्नी बोल रही है कि हमें कभी मौका मिलेगा, तुम जाकर पे लाइन लगाओ ताकि तुम्हें भी मौका मिले। And I was being very embarrassed to, push myself in between the queue. और मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सभी के बीच में जाकर ऐसे बैठ जाऊं। Till the end, then it was God's time to talk to me. फिर तो अंत तक फिर प्रभु का समय आ गया मुझसे बातें करने का। He said, you are actually idealizing that man. और फिर प्रभु ने मुझे बोला कि तुम वो व्यक्ति की एक मूर्ति बना रहे हो। Just think for some time. You had all the questions in your mind. I am answering your questions in the sessions. और प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि तुम बस इतना सोचो कि जो कोई भी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न था वो सारे प्रचार के द्वारा मैंने उत्तर दे दिया है। This much eager you never had to wake up 6 o'clock in the morning and praise me. इतना उत्साह तो तुम्हारे पास कभी पहले नहीं था कि तुम सुबह 6 बजे उठो और मेरी स्तुति करो। To spend time with me or read my word. मेरे साथ समय बिताओ, मेरा वचन को पढ़ो। You are showing so eager to meet that man. He's just a man. लेकिन उससे ज्यादा कितना उत्साह है तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति से मिलने के लिए, इसके बावजूद कि बस वो एक इंसान है। But at the same time, my answers were all answered. लेकिन उसी My समय questions were all answered. लेकिन उसी समय जितने मेरे प्रश्न थे उन सभी का उत्तर मुझे मिल गया था। So I was comfortable that it was Lord's doing that He was not allowing me to talk to him. तो उस समय फिर मुझे इस बात से सुख मिला कि हाँ, हो सकता है कि प्रभु ये अनुमति नहीं दे रहे कि मैं जब उससे नहीं So मिलूं। finally, in the last day, in the last session, I know that he is going to leave now in 15-20 minutes. फिर वो दूसरे दिन के अंत में मैं जानता था कि हाँ, अभी सारे मीटिंग हो गए हैं, अभी वो 15-20 मिनट में निकलने वाले हैं। I thought of going and shaking my hands along with my wife. I called her. मैं सोचा कि मैं जाके बस एक बार हाथ मिला लूं, मैं और मेरी पत्नी, फिर मैंने उन्हें बुलाया। And that was the third meeting I had with Brother Zach. और वो तीसरा मुलाकात था मेरा ब्रदर जैक के साथ। I said, praise the Lord, brother. मैंने बोला प्रभु की स्तुति हो भाई। He asked me, what is your name? उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? I said, Johnson. मैंने बोला जॉनसन। And he heard Samson. एंड उन्होंने सैमसन सुना। I said, no, brother, my name is Johnson. मैंने बोला नहीं, मेरा नाम जॉनसन है। I said, okay, fine. And we left. एंड वो निकल गए। So God at that way also made me realize, और उस समय भी प्रभु ने मुझे बताया, I know you when the time when you were in your mother's womb. मैं तुम्हें उस समय से जानता हूँ जब तुम अपनी माँ की कोख में थे। You met him for the third time, he still doesn't remember your name. वो तुम्हें तीसरी बार मिले, फिर भी वो तुम्हारा नाम को नहीं याद रख So पाए। you better seek me first. तो इसलिए तुम हमेशा मेरी खोज पहले करो। Don't worship any man. कोई इंसान की पूजा मत करो। Praise God, that's what I want to प्रभु की say. स्तुति हो, मैं ये सीखा। First of all, I want to thank Brother George. सबसे पहले ब्रदर जॉर्ज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। First time I had an opportunity to meet Brother Zach with personal fellowship. पहले बार मुझे मौका मिला कि मैं एक आपसी तरीके से ब्रदर जैक को मिलूं। I really blessed. मैं बहुत ही आश्चर्यित हुआ। I was struggling to overcome my bad thoughts. मैं बहुत बार संघर्ष में था कि अपने गलत सोच विचार के ऊपर विजय पाऊं। That one of my message, Zach told there is 4 stages of overcoming sins. एक प्रचार था जिसमें ब्रदर जैक ने बोला कि 3 ऐसे या 4 ऐसे स्तर है जिससे हम लोग पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं। First stage is physically you have to overcome the sin. सबसे पहले शारीरिक रूप में पाप के ऊपर जय पाना। Second stage by words we have to overcome the by words. फिर दूसरा स्तर ये है कि हम लोग अपने शब्दों में पाप के ऊपर जय पाएं। Third thing is overcoming the thoughts. और तीसरा स्थान वो है कि हम लोग अपने सोच विचार में पाप के ऊपर जय पाएं। The fourth thing is our attitude will change like Jesus Christ. और अंत में 14वां भाग ये है कि हमारा जो मनोवृत्ति है, स्वभाव है, वो बदलेगा। This thing really encouraged me. ये सारी चीजें मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। I believe the Holy Spirit will help me to overcome all stages. मैं ये यकीन रखता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करेगा ये सारे स्तरों में, भागों में मैं जय पाऊँ। Finally, my attitude will be like Jesus Christ. और अंत में मेरा जो मनोवृत्ति है वो प्रभु यीशु से बन जाएगा। Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद देता आज प्रभु के लिए। I praise the Lord for this day. तो मुझे केड़गांव गए तो एक चीज़ सीखने मिला एकदम अच्छे से। I learned a very good thing when I went to Khetgaon. तो जैसा पंडित रामभाई का एक छोटा सा वचन मिला था, Like a small words that I came to know from Pandita Ramabai's work, वो मेरे लिए बहुत एनकरेजमेंट था। and I got very encouraged from that. तो लोग चैप्टर 18 में और बहुत में यीशु मसीह कहता है उसने तेरा जो भी पैसा है सब छोड़ वाड़ के मेरे पास आ जा। Where in Luke chapter 18, the Lord Jesus tells that rich young ruler that give all that you have to the poor and come and follow me. लेकिन वो सब छोड़ता नहीं। But that man is not able to leave everything. और तो यीशु मसीह तो चला जाता उधर से। So the Lord Jesus left from there. तो इसी तरह से यीशु मसीह कई ब्रदरों के साथ अपना साथ ऐसे बात करते हैं कि तुम मेरा कलेशा आओ, तुम मेरा वचन सुनो, तो अपना सब चीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। And in the same way, the Lord Jesus many times tells many of us young people that you come to my church, you listen to my word, but we don't pay attention to it.
तो वो पंडित राम भाई को जो छोटा सा वचन मिला था, उसने वचन को इतना खोज किया तो परमेश्वर उसके अंदर जो योजना बना के रखा था उसने वो पूरा कर दिया। So because when the Lord spoke to Pandita Ramabai and because she heard it, the Lord Jesus could fulfill all his plans for her life. तो परमेश्वर ये कहता है कि मेरा राज की खोज करो, तुमको जो भी जरूरत की वस्तु पूरा मिल जाएगी। And the Lord Jesus says that you seek my kingdom and my righteousness first, and all that you need will be given unto you. तो मुझे ये सीखने मिला परमेश्वर का राज खोज करने में कि परमेश्वर अपना जीवन में जो भी योजना रखे रहेगा वो परमेश्वर पूरा करेगा। So I learned this one thing, that if I seek after God, then whatever the Lord has planned for my life, He will fulfill it. इसके लिए हर टाइम परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रेम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। That's why it's very important that I'm always giving thanks to the Lord, always. और परमेश्वर ने मुझे अपने बहुत अच्छा सीखा, इसलिए धन्यवाद करना। And I thank the Lord that He taught me this very good lesson. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ I thank the Lord कि मुझे प्रभु ने ये सब फेलोशिप एकदम अच्छी तरह से सब रखा था that the Lord took care of me really well, and the whole fellowship as well, एंड सब चीज़ प्लान किया और सब चीज़ अच्छी तरह से हुआ, खेलता मीटिंग। and that everything went according to plan and went well. और मैंने एक चीज़ सीखा, रिपेंटेंस के ऊपर सीखा। And I learned one thing in the matter of repentance. एंड वन गॉडली वुमन कैन चेंज एवरीथिंग। And I learned one thing, that a godly woman, एक धार्मिक स्त्री कोई भी चीज को बदल सकती है. हाँ, ये चीज़ मैंने सीखा। This I learned. दो चीज मैंने सीखा हूँ। Two things I learned over there. एक तो पंडिता रमाबाई से From Pandita Ramabai's life. कि जब उनके पास मैसेज आया कि आपकी लड़की का डेथ हो गया, That when the message came to her that your daughter has died, वो फ्यूनरल में जाने का रहता उधर, and she had to attend the funeral. बट उस टाइम वो उसका जॉब इस तरह था कि मेरे पास और भी बच्चे मैं नहीं आ सकती। But the kind of work she was involved in at that point of time, that there were many other children who were also under responsibility, she could not go. जब भी वो अंकल बता रहे थे तो मुझे बहुत टच हो गया। So when the person there who was narrating these things, when he spoke about these things, it really touched me. उस टाइम में मुझे सीखने को मिला कि सिर्फ मैं अपना फैमिली को प्यार नहीं करूँ, बल्कि और भी जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको मैं उससे ज़्यादा प्रेम करूँ। So I got to learn at that point of time that I should not only love my own family, but I should also love the other brothers and sisters in the church. Even Jesus ने बोला कि मेरा माता पिता वही है जो उसके आज्ञा पर चलता है। The same thing even the Lord Jesus said, "Who are my brothers and sisters? Those who do and obey the will of God." और सेकंड चीज ये मेरे को सीखने को मिला The second thing that I got to learn, कि हम पर्सनली बैठे थे ब्रदर जैक के साथ, when I was sitting personally with Brother Zach, और मैंने कुछ सवाल पूछा उनको। and I asked him a question. ब्रदर, अगर आप एक उन्नति के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो? Brother, would you like to give any suggestion for my spiritual growth? ब्रदर ने बोला पश्चाताप करो और मन फिराओ। Brother said, repent and turn your life around. और उन्होंने इस तरह से नहीं बोला, लेकिन उन्होंने इस तरह से बोला कि जो अभी मैसेज तुमने सुना था, मैसेज जो पहला मैसेज उनका था पश्चाताप करो वर्ल्डली चीज से। So he said it by relating it to the first message that he talked about, and that was repenting from all earthly mindedness. लोग कभी हमको मतलब प्राइड भी लेते हैं कि अरे यार मैं 5 साल से चर्च में हूँ या 10 साल से चर्च में हूँ, और कोई व्यक्ति आके बोलता है कि पश्चाताप करो मन फिराओ। Many times we can be very proud about things. We can think I've been in the church for 5 or 10 years, and here is this person telling me once again to repent. और मैं शुरुआत में जब आया था यही मैसेज मिला था मेरे को कि पश्चाताप करो मन फिराओ। When I first came to this church, I got this word of advice that you have to repent and turn your ways. आज ब्रदर से मिला, ब्रदर को भी बोले कि पश्चाताप करो मन फिराओ। Today, after these many years, I'm meeting this brother, and even he's telling me the same thing. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारा पूरा चर्च के लिए पूरा। And I really believe that this message is for all of us in this church. पहला जो मैसेज ब्रदर ने शेयर किया पूरा चर्च के लिए। The first message that he spoke on is for the whole church. मुझे पता नहीं कि पर्सनल लाइफ में सभी का पर्सनल लाइफ में क्या क्या है। Now I don't know what all is going on in every person's personal life. उनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। I only can think about my own self. कि लॉर्ड मुझे बता और भी मैं कौन से एरिया में अभी भी सही नहीं हूँ, मैं ताकि पश्चाताप करो मन फिराऊं। That Lord, you please show me all those areas that are still not right in my life, so that I can turn them and repent. धन्यवाद। Thank you. Praise the Lord. Please Studio. I'm not a very good orator. I can talk anything much. But the very first verse that touched me was the brother Zach was speaking was, that we are normally busy with our life and we are so stressed out and anxious about everything. And the verse that touched me was, the 6th day God created man, and on the 7th day they all rested. तो एक वचन जो ब्रदर जैक ने वहाँ पे प्रचार किया जिसने मुझे छुआ, और वो था ये कि उत्पत्ति के किताब में हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने इंसान को 6वें दिन बनाया, और 7वें दिन वो इंसान के साथ प्रभु ने आराम किया। So it was very giving me so much of joy in my heart.
as a mother also, I've been very anxious, how to, and I used to stress out myself, and I used to think that was a great defeat in my life, and it really encouraged me. And another thing is, as the epistles talk about how to live, women covering their hair, and nowadays in normal churches you don't find all these things, but then these things, it was a conflict in my heart, why people are not obeying the word of God. And then I found something which is so beautiful, which I really love. So, वो पहला वचन सुन के मुझे बहुत ही अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक माँ होने के नाते कई बार मैं बहुत सारी चीज़ों में चिंतित होती थी और मुझे लगता था कि ये एक ऐसा मामला था मेरे जीवन में जहाँ पे मैं हमेशा हारती थी। तो वो वचन मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा वो वचन था जहाँ पे अपोस्टल पौलुस स्त्रियों को बोलता है कि कैसे उन्हें अपने सरों को ढके रहना है कपड़े से, और मुझे ये मामले में हमेशा संघर्ष महसूस होता था कि क्या करना है, समझ में नहीं आता था। Thank God for all this that the Lord has given me. तो ये सारी चीजें जो मैंने सुना उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Brother Zach gave us a story about a young boy who had a millionaire father. Brother Zach ने कहानी की बोली थी जहाँ पर एक छोटा बच्चा था जिसका एक लखपति पिता था, करोड़पति पिता था। And the millionaire father put a multi-millionaire. He put $1 million in his 6-year-old son's account. और ये जो पिता थे इसने काफी सारे लाखों रुपए अपने 6 साल के जो बच्चे थे उसके अकाउंट में डाल दिया। So if somebody goes to the son and asks him, how much money have you got or whatever, तो अगर कोई जाकर लड़के से पूछे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, in his hand there is not even 1 rupee. तो उसके हाथ में उस समय 1 रुपए भी नहीं है। But he's got $1 million in his account. लेकिन उसके अकाउंट में लाखों रुपए हैं। So I understood that God is there with everything for godliness and holiness in our life. तो मैं ये यकीन करती हूँ कि प्रभु ने हमें वो हर चीज दी है जो हमें जरूरत है एक धार्मिक जीवन जीने के लिए। I may not have everything in my hand right now. हो सकता है कि वो सारी चीज मेरे हाथ में अभी नहीं हो, but it is there reserved for me. लेकिन वो रखा गया है मेरे लिए। And Sister Annie said the same thing, that all of us need one very, very close friend. और सिस्टर एनी ने भी यही बात दोहराई, उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पे एक खास दोस्त रखने की जरूरत है। There's something we cannot even tell our own husband or our own wife or our own family members. कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज हम किसी से भी नहीं बोल सकते, हमारे परिवार के लोग या पति पत्नी से भी नहीं कह सकते। But we have a special friend, Jesus, who will listen to us, no matter how dark the secret is in our hearts that He has to forgive. लेकिन एक खास दोस्त ऐसा है हमारे साथ, प्रभु यीशु, जिसको हम लोग हर चीज बोल सकते हैं, भले वो कितना भी पापी या गलत हो। धन्यवाद। हम कोशिश कर रहे थे कि हम खेलगांव जाएंगे, लेकिन जब हम योजना बना रहे थे कभी कुछ हो नहीं रहा था। और खास 2 बातें जिनसे आई वाज रियली ब्लेस्ड इन मीटिंग्स में was पहले जब फ्राइडे नाइट को जो स्टैंडी की मीटिंग में था, और खास करके उन्होंने एक विषय बताया था कि स्त्रियों के लिए कि किस तरह से हमें हमारे पति के माँ बाप को उसी तरह से प्रेम करना है जिस तरह से हम अपने खुद के माँ बाप से प्रेम करते हैं। तो ये मुझे बहुत चुभ गया क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया नहीं था। मैंने ड्यूटी के हिसाब से जो भी सारे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे मेरे इन-लॉज के तरफ, मैं उसको पूरा करती थी। आई वाज वेरी हैप्पी, मैं टिक मार्क करती थी कि आई हैव बीन गुड इन दिस एरिया, मैं बहुत सही थी। बट आई हैव नेवर लव्ड देम द वे एज आई लव माय ओन पेरेंट्स। जब हम हमारे खुद के परिवार के लिए एक स्त्री होने के नाते, पत्नी होने के नाते, जब हमारे माँ बाप को हम जो करना चाहते हैं तो हम वी लुक फॉरवर्ड फॉर सिचुएशंस टू डू गुड टू देम। तो ऐसा मैंने मेरे इन-लॉज की तरफ मेरा व्यवहार नहीं था। तो आई थैंक गॉड दैट ही ब्लेस्ड मी, दैट एक्चुअली डिस्कम्फर्टेड मी अ लॉट ऑन फ्राइडे नाइट। ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग में जब द मैसेज वाज रिपेंट फ्रॉम मैथ्यू 3:2, आई वाज रियली ब्लेस्ड बाय। काफ़ी सालों से इस मैसेज को सुना है, हमने रीड किया है इस वचन को, बस जिस तरीके से परमेश्वर ने उस दिन उसका प्रकाश दिया, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली इवन व्हेन ब्रदर ज़ैक वाज एक्सप्लेनिंग दैट थ्रू हिज एक्शंस, वेयर he was constantly saying turning away from the world, and then he moved his shoulder, his entire body towards the other side and said turning towards heaven. So I was really touched by that also, because many times I thought I have repented, मैंने मन फिराया है, पर actual में I was still looking at the world, I have not turned away. So मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा एक सीख मिला, and I praise God for that. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் கடவுள் என்ன பேசினார்னா, அந்த ஒன்லி பிரதர்ஸ் மீட்டிங்கில் நம்ம பரிசுத்தாவியானவர் எதுக்காக கேட்கணும், எப்படி கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு எனக்கு। और जो बातें परमेश्वर ने मुझे ओनली ब्रदर्स मीटिंग के जरिए से बातें की कि किस
किस तरह से हमें पवित्र आत्मा पाना है और क्यों पाना है। ஸோ தன்னுடைய ஸ்நேகிதனுக்காக வந்து அவன் நைட் நேரத்தில் இன்னொருத்தன் வீட்டில் போய் கதை தட்டுறான். और एक व्यक्ति है, एक दोस्त है जो अपने दोस्त के घर पे जाके रात के समय में दरवाजा खटखटाता है. ஸோ தட்டும்போது அது வந்து அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தனக்காக தட்டல. और वो जो खटखटाता है वो खुद के लिए नहीं खटखटाता है. தன்னுடைய ஸ்நேகிதனுக்காக போய் அந்த கதை தட்டுறான். और फिर वो जो व्यक्ति जो दरवाजा खोलने जा रहा है वो खुद के लिए नहीं खोलने जा रहा है, लेकिन वो जो दोस्त जो खटखटा रहा है उसके लिए वो दरवाजा खोलने जाता है. ஸோ நம்மளும் இந்த பரிசுத்த ஆவியை அப்படிதான் நம்மளும் எதிர்பார்க்கணும் அவர்கிட்ட. और इसी तरह से हम भी परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की अपेक्षा रखते हैं. தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக நம்ம பரிசுத்த ஆவி வேணும் நம்ம கேட்கக்கூடாது. और हमारे खुद की जरूरतों के लिए पवित्र आत्मा चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பத்தி சொல்றேன். मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में बता रहा हूँ. ஸோ நான் அந்த கட்டுமண்டதான் நம்மளுடைய சொந்த தேவைகளுக்காக அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொந்த தேவைகளுக்காக பரிசுத்த ஆவி வேணும்னு கேட்கறது நியாயம் இல்லை. और जब हमारी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे ये करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, तो ये गलत है. அப்புறமா இன்னொரு வசனம் சங்கீதம் 139:24. और भजन संगीता उसके 139:24 भजन संगीता उसके 129 उसका 34 வேதனை உண்டாக்கும் வழி இடத்தில் உண்டோ என்று நித்திய வழியிலே நடத்தும் அப்படின்னு வசனம். और जो रास्ते में तुम बहुत दुख भरा जो रास्ता है यदि उसमें से चल के जाओगे तुम्हारे लिए अनंत काल का रास्ता होगा वो. சரி இந்த பிரேயர் இது ஒரு ஜெபமா இருக்கும். तो ये हमारे लिए प्रार्थना के समान होना இந்த चाहिए. ஜெபம் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எப்பவும் நித்தியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. और फिर जैसे मैसेज में बताया कि ऐसा ही एक प्रार्थना हमारे लिए हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए. ஆமென். मीटिंग और वाशी मीटिंग में एक वचन ने उनसे बातें की. That is Romans 8:29. और वो था रोमियो 8 उसमें 29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among the many brethren. तो उन सभी को जिनको प्रभु ने चुना है उसने चुना है ताकि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के जैसे उनके चित्र के हिसाब से बन सके. Having faith in that verse, I am traveling my life's pilgrim's journey on this earth, that one day my heavenly Father will say to me, "This is my beloved daughter." तो ये वचन के ऊपर विश्वास रख के मैंने अपनी पृथ्वी की सफर तय की है. ये यकीन रख के एक दिन परमेश्वर मुझे देख के बोलेगा कि ये बेटी मेरे पुत्र के स्वरूप में बन चुकी है. परमेश्वर का धन्यवाद हो. जब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला वहाँ पर मैंने एक सीखा जो पश्चाताप करने का, और दूसरी चीज़ है कि नम्र रहने का. अगर हमें दो चीज़ अगर हमारे लाइफ के अंदर हम करते रहे तो हम परमेश्वर की जो योजना है वहाँ तक हम पहुँचेंगे. अगर हम सोचेंगे कि अगर ये चीज़ अगर मेरी लाइफ के अंदर नहीं हो तो शायद आज अगर मैं मर भी जाए तो मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊँगी. अगर ये चीज़ को मैंने सीखा है और मैं कर रही हूँ इस चीज़ को, तो मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए. हाय, ये कभी मैं ऐसा खड़ी होकर कभी बात नहीं किया, तो बहुत डरपोक की ये भी कभी सबका सामने बात करने का हिम्मत मेरे को नहीं रहता. चुप के रहती हूँ क्योंकि मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है. इंग्लिश में मैं ना अच्छी हूँ ना हिंदी में बोल पाती हूँ, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ. फिर भी गॉड मुझे ऐसे रहने नहीं दिया. मेरे पे बहुत ज़्यादा जो मैं नहीं कर सकती थी वो सब किया, लेकिन वो क्रेडिट मैंने गॉड को नहीं दिया, वो मैं अपने ऊपर ले लिया. इतना मैंने उनको जो भी महिमा मिलना था वो सारा महिमा मैंने मेरे में लिया. और इतना साल मैंने और ट्यूशन भी मैं ले रही हूँ, उसमें भी मेरे औकात नहीं है कि मैं वो लोग स्टूडेंट्स को सिखाने की. लेकिन मैं जो सिखाती हूँ वो बच्चे इतना अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं. उधर मेरे एरिया में मैं इतनी फेमस हो गई कि लेकिन गॉड का प्लान मुझे नहीं मालूम था. मैं अपना कमा के पैसे के पीछे भाग रही थी और मैं बहुत पैसा कमाई, और लेकिन मेरे मन का कोई पीस वो शांति वो नहीं मिला. मैंने मेरा फैमिली को बहुत मेसअप किया, और लेकिन ब्लेम पूरा मैंने मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे पे डाला. मैं कभी अपना ब्लेम मैंने लिया ही नहीं.
ये कॉन्फ्रेंस मेरे को एक मेडिकल चेकअप जैसा हो गया मेरे को, कि जो बीमारी अंदर है मुझे पता ही नहीं था। वो कॉन्फ्रेंस में जाके मैं अपने आप को देखने लगी। वो लाइट, गॉड का जो लाइट है वो मेरे में गिरा। मेरे हमेशा में आप ऐसा है, आप बेटी को ब्लेम करती थी, लेकिन मैंने उसको बराबर बड़ा नहीं किया। मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने नहीं किया उसको अच्छी से। लेकिन अभी मैं उस पर चिल्लाती हूँ, तू ऐसी है, तू वैसी है करके। हस्बैंड को बोलती हूँ आप ऐसा है, फैमिली ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं रूट में थी, वो मेरे को गॉड दिखा है कि तूने फैमिली को तूने सब किया, तू बराबर नहीं है करके। वो मैं बहुत खुश हूँ। एकदम स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि गॉड ऐसे कैसे हुई, ऐसे कैसे कर दिए। उसके बाद पता चला कि रूट मैं हूँ। वो मेरे को गॉड मेरे को दिखा है। अभी उस कॉन्फ्रेंस से आने के बाद मैं अपने आप को ऊपर से नीचे तक जो मेरा लाइफ में मैं सब करके रखी है, वो सारा चीजें गॉड एक एक करके बाहर लेकर आ रहे हैं। और मैं बहुत गॉड को थैंक यू बोल रही थी। तो अगर मेरे को नहीं पता चला, मैं हेल्प में सड़ी हुई रहती थी। गॉड मुझे इतना प्यार करते हैं मुझे, इसीलिए मुझे वो सब बाहर दिखाया, नहीं तो मैं सड़ी हुई रहती थी। ये लाइफ में हमारा फैमिली का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। हम कभी ऐसा, क्योंकि हमारा एरिया में सब मारवाड़ी गुजराती रहते हैं, हम लोग एक तमिलियन और एक क्रिश्चियन है, तो कभी चर्च में जाने का मौका नहीं रहता, कभी इधर उधर नहीं जाते, घर के अंदर ही रहते हैं। कोई भी लेकर आते हैं ऐसे घर के अंदर, क्योंकि वो लोग भी इतना मारवाड़ी से मिलते नहीं है, मिलजुल के हम लोग नहीं रहते, अपने आप में रहते। तो मैं भी अपने दुनिया में रहती थी, मेरे को बाहर का दुनिया पता ही नहीं चला। ये चर्च में आके मुझे इतना प्यार मिला। मेरे को इधर मेरे को कोई नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है। मैं कभी किधर जाने को मेरे को नहीं मिलता। मैं मेरे घर के अंदर ही रहती हूँ, बांधती रहती हूँ। जेल में जैसा रहता है वैसा ही बच्चे लोग का ट्यूशन वैसा ही है। ये चर्च में आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे कैसे कितना हर दूसरे के लिए आके ये कितना सारा ये जो भी कोट्स वगैरह डालता है वो मेरे लिए डालता है। जो भी है हमेशा मेरे को लिखने को नहीं आता वो व्हाट्सएप में, फिर भी मैं जो भी है ये डालती हूँ। हर बच्चे मेरे को मेरी लाइफ में आगे आने के लिए बहुत हेल्प करते हैं ये चर्च। मैं बहुत गॉड को थैंक यू बोलूँ, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। इसी वजह से मुझे घर से बाहर निकाल के यहाँ पे लेकर आए। सही मैं गई थी 2-3 चर्च में, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे दूसरे लोग को ही देखती थी, वो लोग ना मुझे नहीं देखती थी। लेकिन इधर आके ही मैं मेरे को देखी, यहाँ पे आके ही मैं ये चर्च मेरे को दिखाते हैं कि तू मेरे अंदर इतना प्राउड, मेरे अंदर इतना गंदगी है, वो सारा गंदगी मैं कितनी अंधेरे में रहती हूँ, वो सारे गॉड बाहर निकाले। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वो लाइट मेरे अंदर मिली है, मेरे ऊपर आ गए। तो वो सारा डार्कनेस मेरे अंदर से जाने वाला, वो मैं इसी वजह से मैं गॉड को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतनी अच्छी जगह पर लेकर आने के लिए, इतने बच्चे। मेरे को अभी एक हिम्मत भी है कि अगर कुछ हो तो मैं हमेशा, मेरे को डर रहता था कि क्योंकि मेरा हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं रहता है, ये गुजरात में रहते हैं, तो मैं वो चली जाती है, मैं अकेले घर पे रहती हूँ। कुछ एक बार उसको कुछ हो गया, रात को एकदम ये हो गया, मैं इतना रो रही थी, मैं अकेले क्या करूँगी। किसी से ये भाग के मेरे फोन किया, ये किया वो किया। अभी मुझे ना डर भी नहीं है कि मेरे फैमिली एक बड़ा फैमिली यहाँ पे है। मेरे को कुछ हुआ तो मेरे को वो भी पूरा किया, मेरा अंदर का हर दर्द पूरा किया, हर एक पूरा किया। छोटा सा प्रेयर मीटिंग मैं चलाती हूँ, मतलब बच्चे लोगों को बाइबल के बारे में बताती हूँ। उसमें भी मेरे घमंड इतना था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। ये वो गॉड मुझे दिखाया ये कॉन्फ्रेंस में। मुझे मेरा तोड़ दिया। ब्रदर रूबी सिस्टर का जो हस्बैंड बोले थे, वैसे ही मेरा भी ब्रदर जैक एक आइडल पर्सन थे। 5 साल से उनका ही मैं मैसेज सुनती हूँ, बराबर रहती हूँ। कॉन्फ्रेंस में मैं जाने को पहले सोचती थी, तो मैं ये नहीं सोचती थी खुशी से ऐसा जा रही हूँ, ब्रदर क्या आ रहा है, जाके मिलने को ये मिला। लेकिन मेरे को 2 दिन मिला ही नहीं है, जैसा उनको मौका ही नहीं मिला उनसे मिलने को। लेकिन मेरे को जो भी वो मैसेज का वो बोले, वो मुझे टच हुआ। मेरा जो चाहत था, जो अंदर का जो था, सबका आंसर मेरे को बराबर दिया।
थैंक यू फॉर द ब्रदर, आपने जो भी मौका दिया, ये मेरे को, मैं अभी ऐसा वेट कर रही हूँ कि ऐसा कभी मिले, कभी ये मिले, ऐसा वेट करती रहती हूँ, तो उसके लिए गॉड को थैंक यू।